Assalamu alaikum, dear students. I hope you'd be okay. Today is 13th of September 2020 and it is class 10th, subject geography, types of resources. I'm from Boys Higher Secondary School, Panjim, namely Mr. Nisar Ahmed Khaja. Lastly, we have started a very new topic of the unit first, resource and development. That was types of resources or classification of resources. In the first very lecture, the previous very topic, we discussed two important types of resources. Firstly, we discussed on the basis of origin, in which we discussed biotic resources and abiotic resources. Biotic, which are living in nature, and abiotic, which are non-living in nature. And in the today's lecture, we are going to discuss the second very category of the classification of resources on the basis of exhaustibility. Number first, इसमें आता है renewable resource and non-renewable resource. Let's try to understand the renewable resource. Renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. वो resources, वो वसाइल जिनको हम reproduce कर सकते हैं, दोबारा से use कर सकते हैं, after consuming उनको natural process से भी use किया जा सकता है. जैसे हम मिसाल के तौर पर example लेंगे water का. We get water from the ponds, from the rivers, from the oceans, and we use this water for bathing, for cooking, for extinguishing fire, etc. Then this water turns back from the lakes, from the rivers, and joins finally into the sea. And once it joins the sea, from sea, यहाँ पर क्या होता है, समंदर से फिर इसको हम समंदर में इसको क्या होता है, evaporation होता है, फिर condensation होता है, फिर यही वाटर जो है एक बार फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर हम हासिल कर सकते हैं. यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ये भी आता है कि वाटर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये नेचुरली रिप्रोड्यूस होता है, रिप्लेनिशेबल होता है एक नेचुरल प्रोसेस में, जिसको हम दोबारा से फिर यूज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर सोलर एंड विंड एनर्जी भी इसमें आता है, ये वाटर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भी आती है. Then we have a second one, that is non-renewable resources. Non-renewable resources here means these are those resources which can't be reproduced or replenished. For example, minerals and fuels. These are one-time used resources. Once we used these resources and they lost their identity, we can say. No doubt that resources are in a limited form. Presently, we're gonna say that are available in a limited form. अब वसाइल जो है ये limited form में है, and we must conserve them in a nice way. We must use judiciously in order to have a knowledge about the future generation. We should think about the future generation कि आने वाली जो नस्ल है वो भी इन वसाइलों का फायदा उठाने चाहिए, वो भी इन रिसोर्स से महरूम नहीं होने चाहिए. तो ये नॉन रिन्यूएबल में आता है. जैसे कोल है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बाइक की मिसाल लेंगे. बाइक वी यूज सिंपली पेट्रोल या कार. ये जो पेट्रोल हम यूज करते हैं, इट्स ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज इट्स ए वन टाइम यूज. एक बार हमने इस पेट्रोल का यूज कर दिया तो ये फिर खत्म हो जाता है, ये दोबारा के समय वापस नहीं आएगा. सो ये जैसे रिसोर्सेज, इस तरह के रिसोर्स जो है, पेट्रोल है, कोल है, इनको हमने कंजर्व करना है, बचा के रखना है, प्रॉपर यूज, जुडिशियसली यूज इनको करना है, कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्स करना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है वो इनसे फायदा उठा सके. Then, dear students, we have the third very category of classification on the basis of ownership. Ownership, milkiyat. First one is my individual resource, and these are basically those resources which an individual buy. जैसे हम construction of house करते हैं, ये एक personal property है. हम जमीन खरीदते हैं, ये भी एक इंडिविजुअल रिसोर्स है. हम पॉन्ड बनाते हैं या वेल बनाते हैं, ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आते हैं, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर्टी, इट्स पर्सनल प्रॉपर्टी. ये इंडिविजुअल कि वो प्रॉपर्टी ओन्ड बाय हिम पर्सनली. इसमें हाउस भी आएगा, बाइक भी आएगा, पॉन्ड भी आएगा, जमीन भी आएगी. एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी जो इसकी है, कम्युनिटी ओनर रिसोर्सेज. दीज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी, जिसमें कम्युनिटी का हक है, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन बट फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी. जैसे कोई पब्लिक पार्क है या कोई रिवर है, रिवर में कोई एक ही नहाने के लिए नहीं जा सकता या पानी नहीं ला सकता. दीज आर बेसिकली कम्युनिटी रिसोर्सेज. या कोई पार्क है या फॉरेस्ट एरिया है, ये इस पे सबका हक है, ये कम्युनिटी रिसोर्स में आएगा. या जैसे बुरियल ग्राउंड्स होते हैं जहां पर हम, जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं, ग्रेवयार्ड, या पब्लिक पार्क्स में आएंगे, पिकनिक स्पॉट्स में आएंगे, प्ले ग्राउंड्स में आएंगे, इन पे सबका हक होता है, न कि किसी एक पर्सन का.
come under this category. Then we have the national resources, one of the important resources of this very category on the basis of ownership. इसमें national resource जो है ये third level पे ये क्या है, all the minerals जैसे water resource हैं, forest, wildlife within the political boundaries. अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया इज बेसिकली एक कंट्री एंड विद इन द कंट्री जो हमारी अपनी बाउंड्री लाइन है, अपनी डिमार्केशन लाइन है, कंट्री के अंदर जो है हमारे अपने रिसोर्सेज हैं, ये अपने रिसोर्स हैं, इनका हमारे ऊपर जो है हम इन पर पूरा हक है हमारा, हम इनको यूज कर सकते हैं. लेकिन कुछ पार्ट ऑफ जो है हमें हक होता है ओशन का भी, जो समंदर होते हैं इनमें भी अपना हक होता है. इट इज अबाउट 12 नॉटिकल माइल्स. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे व्हाट इज नॉटिकल, इट इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द सी. कुछ ओशन का भी पार्ट होता है जिसपे हमारा हक होता है, स्पेशली फ्रॉम 1 to 12 यानी 200 किलोमीटर तक हमारा अपना एरिया रहता है ओशन में, जिसपे हमारा हक होता है, वहां पर हम रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं. लेकिन इसके बाद जो एरिया आएगा वो किसी और कंट्री का आएगा, जो हमारी कैटेगरी में नहीं आएगा. ये नॉटिकल जो होता है जिसे हम डिस्टेंस मेजर कहते हैं ओशंस में, ये 19.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल टर्म एज टेरिटोरियल वाटर, जो हमारी बाउंड्री में ही आता है, जो हमारा पार्ट आता है, यानी 19.2 किलोमीटर. एक्चुअली ये 12 से 200 किलोमीटर तक होता है. 1 नॉटिकल इज इक्वल टू, जो एक नॉटिकल होता है ये इक्विवेलेंट होता है, आई थिंक इट्स इक्विवेलेंट टू 1.9 किलोमीटर, और ये 1 नॉटिकल से 12 नॉटिकल किलोमीटर तक रहता है, दैट मीन्स 200 किलोमीटर, जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं. इस पे किसी का भी हक नहीं रहता. और ये जो ओशन का जो पार्ट हमारा आता है, इस पर हमारे ये नेशनल रिसोर्स हैं, ये रिसोर्सेज है द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये इसी के अंदर जो है ये रिसोर्सेज गवर्नमेंट के रिसोर्सेज कहलाते हैं, या प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट कहलाते हैं. इन रिसोर्स को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट. देन वी हैव इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द ओशन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर. जैसे हमने बात की अभी की इंडिया जो है इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, 28 स्टेट्स इसमें, और 9 यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज. कुछ पार्ट हमारा जो ओशन का भी पार्ट जो हमारा है, जिसपे हमारा हक है, 1 to 12 नॉटिकल किलोमीटर्स वी कैन से. एक नॉटिकल जो है ये डिवाइस है यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ सी. एक नॉटिकल 1 नॉटिकल वी कैन से इज इक्विवेलेंट टू 1.9 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर तक जो एरिया आएगा जिसपे हमारा हक होगा. और बियॉन्ड दैट जो भी एरिया आएगा वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा, जिसपे किसी का हक नहीं होगा, और जिनको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री. इस पे कोई भी कंट्री जो है कंप्लेन नहीं कर सकती. ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं. विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जब तक कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक कि इनसे इनको परमिशन ना मिलेगी किसी भी कंट्री को, ये इन रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, बैनुल अक़वामी वसाइल. जो इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी रिसोर्स कहलाते हैं, जिन पे किसी कंट्री का हक नहीं होता. 200 किलोमीटर तक आपका हक रहता है ओशन में. जो नॉटिकल है, नॉटिकल एरिया, जैसे 1.9 किलोमीटर आएगा, 1 नॉटिकल इक्वल टू 1.9 किलोमीटर, और 1 से लेकर 12 नॉटिकल एरियाज तक रहता है, जहां पर हमारा हक जो रहता है वहां पर हम रिसोर्स को यूज कर सकते हैं. इसके बाद इंटरनेशनल रिसोर्स ये जो है इनको इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं, जिसपे हमारा हक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वी आर नॉट बीन गिवन द परमिशन बाय द international institutions. I think it's clear for today. Thanks. Thank you. Have a nice day. Be safe and sound.